Hello everyone, I am Amanpreet Singh, working as a lecturer in Mechanical Engineering at SBCMS Institute of Technology, Atalgad, Mukeria. So I will teach you the subject Thermodynamics 2. Today in this lecture, we will discuss about our syllabus and we will start our first chapter. So the basic objective to teach this thermodynamics subject to the students of diploma is here are our learning objectives. The first one is to explain the working of IC engine, then to diagnose and rectify simple problems in fuel supply and ignition system. Next, to explain about the function of different components of fuel supply of diesel engine and about the lubrication and cooling system of IC engines and about the testing of IC engines, and the last one is to explain the function of steam turbine, gas turbine and jet propulsion. So there are 7 chapters in our subject. Okay, so our first chapter is IC engines, in which we will study about the IC engine and their types and working of 4-stroke engine, 2-stroke engines. So second chapter is about the fuel supply and ignition system in petrol engine. So in which we will discuss about the carburetor and other things. The next chapter, third chapter is the fuel supply of system of diesel engine. So in this system, we will discuss about the CRDA system, fuel injectors used in diesel engines. Next chapter is cooling and lubrication. In this chapter, we will discuss about the various types of cooling systems used in engines. And the fifth chapter is testing of IC engines. We will discuss about the testing of that, how can we can test the engine, how to calculate the indicator power, brake power. And next chapter is steam turbines and steam condensers. So we will discuss about the steam turbines and steam condensers. And next chapter, last one, is gas turbines and jet propulsion. We will discuss about explain here about the working of ramjet engines, turbojet engines, rocket engines. Okay, so in this chapter we will start our first chapter, which is IC engines. So let's start our first chapter, IC engines. So before starting the chapter, we should know about that what is an engine. So engine is a power producing machine. Like in our vehicles, we have heat engines. So the definition of heat engine is that an engine which converts heat energy into mechanical energy is called a heat engine. So इंजन क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी मशीन है जो हमें पावर प्रोड्यूस करके देती है. सो कोई भी इंजन जो है वो क्या करता है, वो हमारा जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन. जैसे कि हमारी गाड़ियों में लगा होता है इंजन, उसमें क्या होता है कि जो हम उसमें फ्यूल डालते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, तो जब वो पेट्रोल या डीजल जो है हमारा, जो जब वो सिलेंडर में बर्न करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी पहले क्या होती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो पहले कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में फ्यूल की कंबशन की वजह से. और फिर हमारा इंजन क्या करता है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे जाके लेक्चर में. तो वो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं जिससे कि हमारी गाड़ी चल सकती है. ठीक है. सो इंजन क्या होता है कि एन इंजन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड ए हीट इंजन, जिसकी एग्जांपल है हमारी गाड़ियों में लगे हुए इंजन्स. So next we will discuss about the types of heat engines. Okay, the heat types of heat engines क्या होते हैं कि हमारे heat engines कितनी कैटेगरी में बेसिकली क्या है उसकी, these are classified into 2 categories.
The first one is external combustion engine and the next one is internal combustion engine. So एक्सटर्नल कम्बशन इंजन के को हम ईसी इंजन बोलते हैं और इंटरनल कम्बशन को बोलते हैं हम आईसी इंजन। तो जैसे कि इसका नाम है एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, तो ये कौन सा इंजन होता है कि दिस इज़ एन इंजन इन विच द कम्बशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। सो जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हमारे जो पहले हमारी जो ट्रेन चलती होती थी स्टीम इंजन आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारी स्टीम होती थी वो हम बॉयलर में जनरेट करते थे और फिर क्या करते थे कि जो वो हमारी जो स्टीम है जो हमारे मेन ऑपरेटिंग एलिमेंट है हमारे इंजन का, उसको हम बाहर से प्रोड्यूस करके फिर इंजन में इंजेक्ट करते थे। तो उसमें क्या था कि हमारा जो कंबशन होती थी फ्यूल की वो इंजन के अंदर नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमने बॉयलर में अगर स्टीम जनरेट करनी है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तो हीट देने के लिए हमें उसको फ्यूल को जलाना पड़ेगा, ठीक है। और जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो हमारे इंजन के अंदर नहीं होती, वो बाहर होती है, क्योंकि वो तो बॉयलर हमारा तो अलग कंपोनेंट है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल है उसकी कंबशन जो है वो इंजन के बाहर होती है, ठीक है। अभी ये इसका एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि हमारा स्टीम इंजन चलता था हमारे पुराने समय में। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमारा है आईसी इंजन, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है इंटरनल कम्बशन इंजन। तो इंटरनल कम्बशन इंजन क्या है? इसमें क्या है कि जो कंबशन होती है फ्यूल की वो इंजन के अंदर ही होती है, कि इंजन का एक पार्ट होता है जिसके जैसे आपको पता होगा सिलेंडर, तो सिलेंडर में कंबशन होती है, इसलिए उसका नाम क्या है इंटरनल कम्बशन इंजन। इसकी एग्जांपल कौन सी है कि जो हमारे आजकल में जितने भी हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं, पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, तो वो सारे क्या हैं एक इंटरनल कम्बशन इंजन है, ठीक है। ये सारे हमारे जो हैं एग्जांपल इंटरनल कम्बशन इंजन के हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स, ठीक है। तो जो हमारी आईसी इंजन्स है उसको हमने क्लासीफाई करना है कि उसकी कौन कौन सी टाइप हो सकती है, ठीक है। उसकी उसमें क्या है कि उसमें पहले तो मेजरली हम दो कैटेगरी में उसको बांटते हैं, ठीक है। उसमें पहली कैटेगरी है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन्स, इसमें हम सिर्फ आईसी इंजन की ही टाइप्स करेंगे। तो जो हमारी आईसी इंजन है उसमें क्या है कि पहला टाइप है हमारा, पहली कैटेगरी है हमारी रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन्स, जिसकी एग्जांपल्स है हमारे जितने भी पेट्रोल और डीजल इंजन हैं वो सारे क्या हैं रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या है कि उनमें एक सिलेंडर होगा, उसमें क्या होगा पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। ओके, सो सेकंड कैटेगरी इज रोटरी आईसी इंजन्स। उसमें क्या है कि उसमें हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं करता, वो रोटेट करते हैं उसमें। जैसे कि एग्जांपल है हमारा गैस टरबाइन, ठीक है। हमारा जो गैस टरबाइन है वो भी एक एग्जांपल हो गया रोटरी आइस इंजन का। और वैंकल इंजन जो है वो उसमें यूज़ होते हैं हमारी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं, उसमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं इसलिए उसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूज़ नहीं हो पाता, उसमें क्या कौन सा आता है रोटरी आइस इंजन, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास और कई तरीक़ों से हम जो हमारे आईसी इंजन है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग हम मेथड हैं, तो उसमें हमारा पहला मेथड जो है उसको कैटेगरी से करने का, उसमें है पहला अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल। कि वर्किंग साइकिल का मतलब कि वो काम कैसे करता है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल। तो उसमें अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी द इंजन कैन बी ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो आजकल की बाइक्स हैं, आपके पास सभी के पास बाइक वगैरह होंगी, तो उसमें क्या है कि जो हमारी बाइक है उसमें जो हम इंजन यूज़ करते हैं वो कौन सा आता है 4 स्ट्रोक इंजन। इसकी वर्किंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक क्या होता है 2 स्ट्रोक क्या होता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन हो गया, और दूसरा कौन सा होता है 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। जैसे कि हमारे पहले बजाज चेतक के स्कूटर आते थे,
वो क्या थे, वो 2 स्ट्रोक इंजन थे, उसमें नॉइस भी ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारी बाइक्स वगैरह आती हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन होती हैं, उसमें नॉइस भी कम होती है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है उनसे, ठीक है। ये तो अभी चलो आगे जाके पढ़ेंगे हम। तो सेकंड कैटेगरी हमारी है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, कि इंजन की टाइप ऐसे भी हो सकती है कि इसमें कौन सा हमने फ्यूल डाला है, ठीक है। जैसे कि पहली कैटेगरी है हमारा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन कौन सा होगा, जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, पेट्रोल। जैसे कि हमारी बाइक्स हैं घर पे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ भी पेट्रोल की होती हैं। दूसरी कौन सी होगी, हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन जिसमें कि हम डीजल एज ए फ्यूल यूज़ होता है, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी बसेज हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, ठीक है। वो गाड़ियाँ भी कुछ मॉडल होते हैं जिसमें डीजल भी पड़ता है, ठीक है। वो डीजल इंजन हो गया। थर्ड है गैस इंजन, ठीक है, जो हमारे गैस किट के सीएनजी गैस पे चलते हैं, जैसे हमारे ऑटो वगैरह, ठीक है। और बाई फ्यूल इंजन का, बाई का मतलब क्या होता है, बाई फ्यूल का मतलब क्या है, जिसमें दोनों फ्यूल यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमने गैस किट लगा रखी है, हम गैस भी यूज़ कर रहे हैं और पेट्रोल या डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाई फ्यूल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडाइनमिक साइकिल। सो थर्मोडाइनमिक साइकिल का मतलब क्या है कि जो हमारा इंजन है वो किस साइकिल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसमें पहला है हमारा ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं वो किस साइकिल पे वर्क करते हैं, ऑटो साइकिल पे, ठीक है। और दूसरा है हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल कौन सा होता है, जिस जो हमारे डीजल इंजन है वो उसमें कौन सा, जो उनका थर्मोडाइनमिक साइकिल है वो पूरा किस पे वर्क करता है, डीजल इंजन पे, डीजल साइकिल पे वर्क करता है डीजल इंजन, ठीक है। ये हमारी 3 कैटेगरी होगी। उसके बाद हमारी फोर्थ जो कैटेगरी है वो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन। जैसे कि आपको पता है कि हमने चाहे पेट्रोल डाला हो अपनी गाड़ी में, चाहे डीजल डाला हो, तो अभी जब जब तक वो जलेगा नहीं, उसकी इग्निशन नहीं होगी, कंबशन नहीं होगी, तब तक हमारे जो इंजन है उसमें काम नहीं होगा, पावर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी जो हमने फ्यूल डाल दिया है सिलेंडर में उसको जलाने के लिए, जैसे हमने मान लो गैस पर अगर आपने आग जलानी है तो उसको लाइटर से या माचिस से जलाते हो ना पहले, तो मतलब वो क्या करते हो, आप उसको इग्नाइट करते हो, ठीक है। हमारे गैस अब जब आप ऑन करते हो उसमें क्या आती है, एलपीजी गैस आ रही है, और जब आप लाइटर से लाइट जगाते हो इग्नाइट, तो क्या करते हो, उसमें आग जल जाती है। इसी तरह से अगर हमारे इंजन में जब हमने पेट्रोल या डीजल डाला हुआ है, तो जब तक वो उसकी कंबशन करनी है तो हमें उसको इग्नाइट भी करना होगा किसी तरीके से, ठीक है। तो उसका मेथड 2 तरह के हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको इंजन को भी डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला है हमारा स्पार्क इग्निशन और एसआई इंजन। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें क्या लगा होता है, एक स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग क्या करता है, जो हमने फ्यूल डाला होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर डाला होता है सिलेंडर में, उसको वो इग्नाइट करता है, उसको जलाने में मदद करता है। तो इसलिए जो वाले इंजन जिनमें जो हमारा जो चार्ज है उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसको हम कैसे जलाते हैं, स्पार्क के तौर पर, स्पार्क की हेल्प से। उसको वो क्या बोलते हैं, हम स्पार्क इग्निशन इंजन और एसआई इंजन। जैसे कि हमारे जितने भी पेट्रोल वाले इंजन हैं उन सब में क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग। तो वो सारे कौन से होंगे, हमारे स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो है वो कौन सा है, कंप्रेशन इग्निशन और सीआई इंजन। इसमें क्या होता है, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है हमारी, जो हमारा डीजल इंजन होता है, क्योंकि वो जो डीजल इंजन होता है उसमें क्या है, स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, लेकिन उसमें भी जो कंबशन होती है वो कैसे होती है, कंप्रेशन से, कि उसमें कंप्रेशन ही, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो उसमें हम जो हमारा फ्यूल है, जो हमारी एयर होती है उसको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि जब उसमें फ्यूल डाला जाएगा, स्प्रे होगा उस ऊपर से, तो वो तभी उसकी वो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा चौथा हो गया। उसके बाद हम फिफ्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, जैसे कि हमारी आपने देखा होगा कि हमारी बाइक जो होती है उसमें तो सिर्फ एक ही सिलेंडर लगा होता है नीचे,
ठीक है, एक ही स्पार्क प्लग लगा होता है उसमें। लेकिन जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें 2 सिलेंडर भी हो सकते हैं, 3, 4, 6, 8 ऐसे होते हैं अलग अलग सिलेंडर। तो ठीक है, उसके हिसाब से पहला हो गया हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन जिसमें सिर्फ एक सिलेंडर लगा होता है, जैसे हमारी बाइक में लगा होगा। ठीक है, उसमें चाहे वो 100 सीसी का हो, चाहे वो 150 सीसी का है या 180 का है, तो उसमें सिर्फ एक सिलेंडर लगा हो। और दूसरा होगा मल्टी सिलेंडर। मल्टी सिलेंडर की जिसमें एक से ज़्यादा लगे होंगे, 2, 3। ठीक है, V6 इंजन होता है जैसे, उसमें 6 सिलेंडर लगे होते हैं। V8 होता है, उसमें 8 सिलेंडर लगते हैं। ठीक है, V12 उसमें 12 सिलेंडर होते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा सिलेंडर लगे होंगे तो वो हो गए हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन्स। ठीक है, इस ठीक है, ये हमारी थी आईसी इंजन की, जो हमने क्या किया उसको कैटेगरी अलग अलग क्लासिफाई किया उसको। पहले रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, फिर रोटरी इंजन हो गया, फिर उसको हमने पहले किया हमने वर्किंग साइकिल के तौर पर कि वो 4 स्ट्रोक है या 3 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज कि पेट्रोल इंजन हो रहा है, डीजल हो रहा है, गैस हो रही है। उसके बाद हमने किया थर्मोडाइनमिक साइकिल कि उसमें ऑटो साइकिल के बेस पे वर्क कर रहा है या फिर वो डीजल साइकिल पे बेस कर वर्क कर रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन कि जो हमने उसमें फ्यूल डाला है उसको हम जलाएंगे कैसे, इग्नाइट कैसे करेंगे, स्पार्क प्लग से करेंगे जहाँ कंप्रेशन से करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सिलेंडर्स कि एक सिलेंडर लगा हुआ है जहाँ 2 सिलेंडर लगे हैं या 3 लगे हैं, 4 हैं। ठीक है, ये हमारी होगी आईसी इंजन की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा इंजन है वो 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या क्या हो गया या 2 स्ट्रोक क्या हो गया। ठीक है, तो जो एक 4 स्ट्रोक साइकिल होता है वो क्या होता है, ए 4 स्ट्रोक साइकिल completes with the 4 strokes of piston and 2 revolutions of crankshaft। ठीक है, अभी ये हमारी टर्म्स यूज़ हो रही हैं इसमें कि स्ट्रोक होती हैं पिस्टन की, क्रैंकशाफ्ट। तो ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए पहले कि क्या है ये चीज़ें क्या हैं सारी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो हमारा ये क्या है, एक 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग है पेट्रोल इंजन की। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमारे इंजन में। ठीक है, पहला हमारा कंपोनेंट्स जैसे ये हमारा है, ये ज़रा पूरा जो है ये क्या है हमारा सिलेंडर है ये। ठीक है, और ये जो लगा हुआ ये राउंड वाला ये क्या है, इसको क्या लिखा हुआ है, पिस्टन। ठीक है, ये कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन मतलब कि जो हमारा जहाँ पे हमारी फ्यूल की कंबस्शन होगी वो पूरा चैम्बर, मतलब ये इतना पूरा एरिया जहाँ पे हमारा फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, ये इसको हम ये क्या हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ही हमारी सारी कंबस्शन होगी हमारे इंजन की, फ्यूल की। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे ऊपर क्या लगा हो, इनटेक वाल्व। मतलब क्या, हमारे जो सिलेंडर होता है पेट्रोल इंजन उसमें क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर 2 वाल्व लगे होते हैं। ये देखो पहला वाल्व ये लगा हुआ, दूसरा वाल्व ये लगा हुआ। ये जो लेफ्ट में है इसको क्या बोलते हैं, इनटेक वाल्व, जहाँ इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। यहाँ से क्या होगा, जो हमारा कार्बोरेटर होगा वो एयर फ्यूल मिक्सचर बना के देगा और यहाँ से सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, इनटेक वाल्व। ठीक है, और इसके बाद दूसरा वाल्व जो जहाँ पे लगा हुआ है ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट का मतलब कि यहाँ से इसकी एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर जाएंगी। आगे क्या होगा, हमारा साइलेंसर लगा होगा। ठीक है, साइलेंसर के बाद वो गैस जैसे हम आपको पता होगा कि जो कम एग्जॉस्ट गैस है बाहर इन्वायरमेंट में जाती है। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए। इसके बाद देखो ये यहाँ पे जो सेंटर में लगा हो ये क्या है हमारा, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम मैंने अभी बताया था आपको कि स्पार्क प्लग क्या होता है, जिसने कि जो जैसे यहाँ से इनलेट से यहाँ से एयर फिल्म मिक्सचर आ गया, यहाँ पे पेट्रोल भी आ गया और एयर भी आ गई। अभी इसको इग्नाइट करना है तो वो कौन करता है, ये हमारा स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो यहाँ पे स्पार्क करता है, यहाँ से स्पार्क होकर फिर क्या होती है यहाँ पे कंबशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा क्या है, अगला कंपोनेंट क्या है हमारे इंजन का,
कंबस्शन चैम्बर मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद पिस्टन हो गया, पिस्टन का ये रेसिप्रोकेट करता है नीचे, यहाँ से ऊपर ऐसे जो हमने एरो बनाया ना, ऊपर नीचे जाता है, नीचे ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट क्या है, हमारा कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड है सारी, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को कनेक्ट करती है किससे, क्रैंक शाफ्ट से। ये क्या है, हमारी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इसमें हम थोड़े पॉइंट है जो, जैसे हमारा ये सिलेंडर है, ये जो पिस्टन ये हमारा है, ये यहाँ तक अगर मूव कर सकता है नीचे को, ये यहाँ तक जा सकता है, तो इसको, ये जो ऊपर वाला इसको हम क्या बोलते हैं, TDC। TDC क्या होता है, टॉप डेड सेंटर। और नीचे वाला क्या है, जो इसको क्या बोलते हैं हम, BDC, बॉटम डेड सेंटर। दो सेंटर हैं हमारे डेड सेंटर, ठीक है, हमारे इंजन के। एक ऊपर है, उसको बोलते हैं हम TDC, टॉप डेड सेंटर, और नीचे है जो BDC, बॉटम डेड सेंटर। तो जो टॉप डेड सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि जो पिस्टन जब यहाँ से मूव करेगा तो ये सिर्फ यहाँ तक ही जा सकता है, कि मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक ये जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉप डेड सेंटर। और ये जब नीचे आएगा यहाँ कि मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक ये जा सकता है मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं हम, BDC, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा TDC ऊपर, और ये हमारा हो गया BDC, ठीक है। टर्म पता चलेगी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड होगी, ये हो गया हमारी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है। जी देखो, मैंने आपको बोला था कि रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या है, कि जैसे ये पूरा हमारा क्या है, सिलेंडर है, इसमें जो पिस्टन है ये क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है कभी, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाता है। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जहाँ इसका टेक्निकल टर्म और है, इसको बोलते हैं फ्रो टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इसको, ठीक है, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, ठीक है। ये हमारा स्पार्क प्लग, ऐसे ही हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं ये हमारे पेट्रोल इंजन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक पेट्रोल इंजन है जिसमें हम, जैसे जैसे मैंने बोला कि फोर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, कि मान लो ये हमारा पिस्टन है, जब देखो आपके सामने ये पिस्टन है, या यहाँ के कहाँ पे ये है, बॉटम डेड सेंटर पे, BDC पे है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था, TDC, टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन यहाँ से, मान लो यहाँ से चला, बॉटम डेड सेंटर से चला, और ये ऐसे मूव गया ऊपर तक जब पहुँच गया, यहाँ पे जब पहुँच गया तो क्या होगा कि ये एक स्ट्रोक पूरा हो गया। मतलब स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अनदर डेड सेंटर, कि एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर से जब पिस्टन पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक स्ट्रोक पूरा हो गया, ठीक है। तो जब हमारा जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, उसमें साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब ये पिस्टन यहाँ से चला नीचे से, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर से चला, टॉप डेड सेंटर पे गया एक बार, फिर टॉप डेड सेंटर से नीचे आया, दो स्ट्रोक हो गए, फिर यहाँ से बॉटम से टॉप पे गया, तीन स्ट्रोक हो गए, फिर ऊपर से नीचे आया, चार, मतलब कि चार स्ट्रोक होंगे, फिर जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। और जब ये चार स्ट्रोक होंगे, और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये कैसी है, ऐसे रोटेट करती है गोल, ठीक है, राउंड राउंड। तो जब चार स्ट्रोक हो जाएंगे तो ये क्रैंक शाफ्ट कितनी बार घूमेगी, दो बार पूरा चक्कर, ऐसे एक बार ही पूरा चक्कर, फिर दूसरी बार फिर पूरा चक्कर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक हमारा हमने अगर कोई सर्कल बना हुआ है, ऐसे ऐसे हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल, ये अगर ये पूरा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। ये कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री, ठीक है, एक एक रेवोल्यूशन में। तो दो रेवोल्यूशन में कितना होगा, दो में कितना होगा, ठीक है, 720
डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, एक वर्किंग साइकिल की 4 स्ट्रोक होते हैं पिस्टन के और 2 रेवोल्यूशन होते हैं क्रैंकशाफ्ट के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो अब इस वाली क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसकी हम वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रोक हैं 4 स्ट्रोक हैं। देखो 4 स्ट्रोक के ना मैं नाम बता देता हूँ। पहला होता है इनटेक स्ट्रोक, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सक्शन स्ट्रोक। सेकंड हमारा है, पहला हो गया हमारा इनटेक जहाँ सक्शन हो गया, सेकंड स्ट्रोक है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा है, पावर स्ट्रोक, ये पावर स्ट्रोक, और चौथा कौन सा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। ये 4 स्ट्रोक जब कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या होगा, जो हमारी क्रैंक है ये कितनी बार घूम जाएगी, दो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा साइकिल जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, ठीक है, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ये हम अभी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये सारा रिवाइज़ करना, सारा जो हमने पढ़ाया आपको। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।